پورا مجمع بولو اللہ. آواز نیچے ہو گئی آپ کی, آواز کو اٹھا کر بلند کر کے بتاؤ اللہ ایک ہے. یہ دیکھیں اللہ اللہ, غور سے سنیے گا. ایک بوڑھی عورت چرخا چلا رہی تھی. وہ بوڑھی عورت کے پاس ایک نوجوان آ گیا, آ کر کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے. بوڑھی عورت ایک نظر چرخا کو دیکھتی ہے, ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے او بیٹا سنو اللہ ہے. کیا جواب دی اللہ؟ اونچا بولو کیا جواب دی اللہ ہے. جب اتنا سنا نوجوان بول پڑا او بوڑھی ماں دلیل کے ساتھ بات کرتی ہو یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو؟ اتنا سننا تھا. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی, چرخے کو دیکھ کر مسکرائی, کہنے لگی او بیٹا میں دلیل کے ساتھ بات کرتی ہوں. کہا او ماں یہ بتاؤ تیرے پاس دلیل کون سی ہے؟ اتنا سننا تھا. وہ نوجوان کہنے لگا یہ بتاؤ دلیل کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت چرخے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے او بیٹا سنو سنو دلیل یہی چرخا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. تو دلیل یہی چرخا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سنو سنو جب یہ اتنا چھوٹا سا چرخا میں چلاتی ہو تب چلتا ہے, نہیں چلاتی ہو یہ چرخا نہیں چلتا ہے. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مطلب یہ ہے تم نے نہیں سمجھا. کہا کہ نہیں سمجھا. کہا مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا میں چلاتی ہوں تب چلتا ہے, نہ چلاؤں نہیں چلتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ. پوچھا مجمع بولو اللہ. حضرت سے گزارش ہے کہ پیچھے لوگ جو ہے بہت کھڑے ہیں, لوگوں کو تھوڑا آگے بڑھا دیجیے. ماشاءاللہ جو لوگ لوگوں کو تھوڑا آگے بڑھا لیجیے, لوگوں کو تھوڑا آگے بڑھا لیجیے. ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا جو لوگ ادھر ادھر ہیں, جو اراکین ہیں, جو رضاکاران ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات وہاں بھیڑ گیٹ پہ نہ لگنے دیں, بلکہ جو لوگ گیٹ پہ کھڑے رہیں ان کو اندر لے لیں. جتنے پورا مجمع یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں, یہ تو دلیل عقلی تھی, یعنی دلیل عقلی سے ثابت کر دیا گیا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. غور سے سنیے گا پورا مجمع. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور یہ کتاب کا نام رامائن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سنو معین الدین تمہیں رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس بھاگوت گیتا بھی موجود ہے. جو بھی میں بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا, ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے. اور جو معین الدین پڑھتا ہے وہی آ کر لوگوں میں بولتا ہے. اور یاد رکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رامائن. یہ دیکھیں یہ رامائن بتائے گا اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے. آپ نے قرآن کی آیت سنی, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. یہ دیکھیں رامائن میرے ہاتھ میں ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, لوگوں کو دلیل دینے کی. کوٹے کے سامنے آپ بیم بجاؤ, بھینس کے سامنے بیم بجاؤ, لیکن وہ تو بھینس تو کھڑے کھڑے بجلائے گی. لیکن یہ دیکھیں میں اس لیے پڑھتا ہوں ایسی محفل میں تاکہ کچھ میڈیا والے یہاں دیکھ رہے ہو, دو چار میڈیا والے ہیں, لیکن میں ان میڈیا والوں کی بات نہیں کرتا. میں اس لیے بولتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, اس لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ زمانے کے میڈیا والے اور وہ میڈیا والے جو ہر وقت ہندو مسلم کرتی ہے اور جن کی دکان ہی چلتی ہے ہندو مسلم کروانے سے, میں ان میڈیا والوں کے منہ پہ تماچا دینا چاہوں گا. او میڈیا والوں تیرے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھنا میں اس لیے پڑھتا ہوں, ہم ایسے جلسوں سے بتاتے گئے, لوگ کہتے گئے مسلمانوں کے جلسوں میں مت جاؤ, لوگ کہتے گئے مسلمانوں کے مدرسوں میں آتنکواد کی پڑھائی ہوتی ہے, مسلمانوں کے مدرسے میں آتنکوادی بنایا جاتا ہے. میں کہنا چاہوں گا او ظالم, کبھی رسول اللہ کے گھر میں آ کر تو دیکھ ہمارے مدرسوں میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے
जाएगा। अगर कोई शख्स किसी पे नाहक जुल्म करेगा, यानी कोई किसी पर अगर ऐसे ही जुल्म कर देगा, तो अगरचे वो मुसलमान हो, अगरचे वो काफिर हो, मैं कयामत के दिन उसकी तरफ से खुदा की बारगाह में उसका वकील बनकर मैं मुकदमा लड़ूंगा। अल्लाह समद, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान की तरफ से लड़ूंगा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं मुस्लिम की तरफ से अपने दीवाने की तरफ से लड़ूंगा। नहीं, हुजूर ने फरमाया कि मैं कोई भी मजलूम होगा, मैं मजलूम की तरफ से मैं खड़ा होकर मुकदमा लड़ूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, और जमाने वालों, इस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में आवाज पहुंचती है, पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं। मोइनुद्दीन कादरी का एक छोटा सा पैगाम सुनो। हम ऐसे जलसों से कहते हैं जिसको तुम आतंकवाद का अड्डा कहते हो, जिस मदरसे को तुम कहते हो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, मदरसे से आतंकवाद जन्म लेता है। नहीं प्यारे, हमारे जलसों में आओ, हमारे उलमा तो बयान करते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है, मानवता का पैगाम, इंसानियत का पैगाम। लेकिन आज कुछ चंद लुच्चे लफंगे जो दलाल मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जो मीडिया वाले हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, जो 4 रुपए पर अपनी आबरू का सौदा करने वाली मीडिया। उस मीडिया वाले से मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, हिंदू मुस्लिम करके तू यहाँ पे जहर मत घोल। हमारे यहाँ से तो पैगाम दिया जाता है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमारे जलसों से पैगाम दिया जाता है। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब, एक पंडित जी का घर है, फजर की आजान होती है, पंडित जी वो मंदिर जाता है, हमारे दरवाजे की घंटी बजा कर जाता है, मौलवी साहब उठ जाइए फजर की आजान हो गई है। मैं कहना चाहूंगा वो भी तो एक हिंदू है, लेकिन तुमने वो जहर खोला है। तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी। ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, एक बात याद करके जाइएगा, मुसलमान आतंकवादी कभी नहीं होता है। और मैं ऐसे जलसों से आज इस रतवा के जामिया नज़रिया कलीमिया की सरजमीन से, मदरसे के सहन से, हुजूर शेखुल हदीस की मौजूदगी में ये पैगाम दूंगा, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर गंदा नारा लगा रहे थे और कह रहे थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी वो नारा सुना होगा। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, हिंदुस्तान की जनता पर रहम करो। ओ मीडिया वालों, अब तो नफरतों की बीज मत बो। याद रखना, तुम कहते हो असल में आतंकवादी मुसलमान, ना, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते गए और कहते गए कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, हमारा इस्लाम प्रेम सिखाता है, हमारा इस्लाम मानवता सिखाता है, हमारा इस्लाम इंसानियत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, तुम कहते हो अब पूरे मजमे में कोई खामोश न रहे, पूरे मजमे से नारा लगना चाहिए। जो लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मैं उसके मुंह पे तमाचा देना चाहूंगा। पूरे मजमे से तैयार रहना नारा लगाने के लिए, और ये बता देना जहां मुस्तफा के गुलाम बैठे गए, जहां आशिके रसूल बैठे गए। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो नारा लगाते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, तुम कहते हो राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, हमारे उलमा को देखो,
इन उलमा के नस को काटोगे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, मुफ्ती साहब के नस को काटो, नहीं साहिब यहाँ पे बैठे एक 10 साल के बच्चे के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा तैयार रहना, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो बरेली के आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहर में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, ठहरी वहाँ तुम्हारे लिए। पूरा मजमा याद रखना, अगर आपने बोलना सीखा पूरी दुनिया में एक नारा गूंजेगा। किसी फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, फिलिस्तीन के बच्चे, एक शख्स को हजरत हमने देखा, वो यानी कि यूट्यूब पे कलेजा बाहर आ गया, एक बूढ़ा बाप चॉकलेट बांट रहा है सड़कों पे फिलिस्तीन में निकल के, और वो ड्राई फ्रूट बांट रहा है, खजूर के पैकेट बांट रहा है। किसी ने पूछा, ओए तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरी बेटी शहीद हो गई, तेरी बेटी तेरी बीवी शहीद हो गई, तेरी माँ चली गई, तेरा बाप शहादत का जाम नोश कर लिया, तू यहाँ चॉकलेट बांट रहा है। कहा इसलिए तो बांट रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे पूरे खानदान की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। ऐ लोगों, शिकन रखो अपने अंदर, पूरा मजमा अगर बोलोगे एक इनकलाब बर्पा होगा, बोलने की ताकत रखो। जरा पूरा मजमा बताओ, फिलिस्तीन की माएँ आवाज दे रही है, फिलिस्तीन के बच्चे आवाज दे रहे हैं, फिलिस्तीन के बुजुर्ग आवाज दे रहे हैं। लोग कहते गए फिलिस्तीन ने हमला किया है इसलिए वो आतंकवादी है, मोइनुद्दीन कादरी फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, ये उलमा फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, हमारे मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। क्यों? लोग अगर कहे उसने हमला किया, सुनो, अपनी जमीन पे उसने पनाह दिया था इजराइलियों को, उन खबीसों को पनाह देने का नतीजा ये निकला जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कंपनी खोलने की इजाजत दिया था, उसने हिंदुस्तान पे 200 साल तक हुकूमत कर लिया। इसी तरह इजराइलियों को जब कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमानों ने जगह दिया था, और उसकी वहां उसी की जमीन पे अंग्रेजों की तरह इजराइलियों ने कब्जा कर लिया। अब ये बताओ, अपनी जमीन पे अगर कोई अपनी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, अगर उसे हटाने में अगर कोई आगे बढ़ता है, अगर उसे तुम आतंकवादी कहोगे तो फिर नेहरू को तुम क्या कहोगे, गांधी को तुम क्या कहोगे? अगर वो आतंकवादी है तो फिर गांधी को भी याद रखना, तुम्हें आतंकवादी कहना पड़ेगा, नेहरू को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा। हमारे फिलिस्तीन की माएँ जीती है अल्लाह के लिए, मरती है तो रसूलुल्लाह के लिए, और आवाज आती है फिलिस्तीन की माएँ, ए मेरी माँ और बहनों, तुम भी देखो उनका जज्बा, बेटा कट गया, शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, यानी घर के सारे लोग शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिए, लेकिन जबान पर एक ही नारा है। जमाने ने कहा इस्लाम मिट जाएगा, कहा कि ओ भाई क्या बोलते हो, इस्लाम मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, बल्कि नारा और गूंजेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा जवाब देना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, याद रखना, आप बोलने वाले बन जाओ। आप अगर बोलने लगे आपकी नस्लें बोलेंगी। इस्लाम आपको पैगाम दे रहा है। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है। लोग कहते हैं अल्लाह के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें, परवरदिगार आलम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा लोग गलासते बकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, वो गलासत बकने वालों, कुरान को पढ़कर देखो। तू अगर मुस्तफा का कलमा पढ़कर अगर मुसलमान ना हो गया तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना। शाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आता हजरत।
बल्कि पढ़े लिखे जिसने भी इस्लाम को पढ़ा है वो इस्लाम कबूल करके मुस्तफ़ा का गुलाम बन गया है। पढ़े लिखों के सामने इस्लाम को पेश करोगे वो समझेगा, जाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, बेवकूफों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा। जिस पढ़े लिखे ने भी इस्लाम को पढ़ा है वो कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया है। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं, सुना दूं ये रामायण क्या कहता है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले अब भी नहीं बोल रहे, याद रखना कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर तुम्हें देख रहे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम देख रहे हैं, तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे पीरो मुर्शिद का वास्ता, जिनके पीर जो भी गए हाथों को उठाकर पीरो मुर्शिद के नाम पर लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूं। ये देखकर मेरे हाथ में रामायण है, लेकिन ये बात मैं इस जगह पे मैं सोचता हूँ, सुने कहा के लोगों कन बिन परस नयन बिन देखा करई घ्रान बिनु से असीसा बिन पद चले सुने बिन कारा कर बिन करम कर विधिनाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाड़ी बगता बड़ जोगी। ये मेरे हाथ में किताब है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप क्या पढ़ दिए, हम लोग तो पल्ला ही नहीं पढ़ा। ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये किताब है, हवाला आपके सामने, अगर किसी को पढ़ना आता हो वो आकर पढ़ सकता है। हमने सारी किताबों में निशान लगा कर रखा है। ये देखें इस किताब का पेज नंबर 130 है, श्री रामचरितमानस है। इसमें लिखा गया बिन पद चली सुने बिन गाना। अल्लाह का तसव्वुर क्या है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाली खालिक क्या है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला मालिक कौन है। कहा के लोगों उनका तसव्वुर ये है बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, दुनिया का चलाने वाला मालिक वो है। बिन पद चली सुने बिन गाना, जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है। जरा झूम कर बोलो, कहा हमारे तरफ पाँव नहीं है। जो सुनता है हमारी तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। कहा क्या कहना चाहते हो, कहा सुनो दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो नाकों से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह एक है, पूरा मजमा बताओ वो अल्लाह है। बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। ये देखें भागवत गीता भी है, लेकिन इधर मेरी बात लंबी ना हो, अभी फिर मैं बोलूंगा। लेकिन मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ ज़मीनो आसमान के पैदा करने वाले, आका वली की फिर दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा। कहाँ? दुनिया में भी और आखिरत में भी। गौर से सुनिएगा, अल्लाह का दोस्त कौन बनता है, अल्लाह किसका दोस्त बनता है। मैंने पहले ही बताया खुद अल्लाह से दोस्ती करना ये कमाल की बात नहीं है। मुफ्ती साहब से पूछिए, अल्लाह जिससे दोस्ती करने लगे वो कमाल की बात है। अल्लाह दोस्ती किससे करता गए, आओ गौसे आजम से पूछते हैं, जिनके नाम इस महीने को जिनके नाम से निस्बत हासिल है। गौसे आजम फरमाते गए लोगों चार काम कर लो, चार काम करोगे अल्लाह तुमसे दोस्ती फरमाने लगेगा। आखिर वो चार कौन से काम है, अगर सुनना चाहते हो वो चार कौन से काम है, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह, झूठ कर बोलो सुभान अल्लाह, मजमा बोलो माशाअल्लाह। सुनिएगा अब मैं बयान कर दूं, गौसे आजम फरमाते हैं लोगों चार काम करो। उनमें से पहला काम गौसे आजम फरमाते गए लोगों, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का दोस्त तुम बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाए,
तो माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, आज न जाने कितने लोगों की माएँ रो रही गए, कितने लोगों के बाबा रो रहे गए। गौर से सुनना लोगों, आप अगर चाहते हो ऐसे जलसों में आप आए हो, बहुत ज्यादा मदरसे में पैसे दे रहे हो, देना चाहिए, मस्जिद में देते हो, देना चाहिए, लेकिन शर्म तो उस वक्त आती है मुफ्ती साहब इस कौम पे के सामने सर झुक जाता है। किसी के सामने अगर इस कौम की बात की जाए, वो हमारी कौम जो मदरसे मस्जिद के लिए नाच गाने तक के लिए लाखों रुपए लुटा देती है, वो नौजवान लाखों उड़ा देता है। ये पैसे यहाँ देखो मेरे ऊपर में उड़ा दिए, उड़ाना चाहिए, मदरसे में दो, मस्जिद में दो, लेकिन उन बेटों पे देखकर शर्म आती है जो बेटे की माँ घर में दवा के लिए पैसे मांगे, वो बेटा झुंझला कर बात करता है। और सच्ची बात मैं बता रहा हूँ हजरत, आज एक बेटा से अगर ये बूढ़ी माँ है ना, घर में बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है हजरत, अगर रोजाना 10 दिन तक अगर गैस की दवा के लिए पैसे मांग लेना, तो ये कौम हमारे झुंझला कर बात करती है, इस कौम के नौजवान झुंझला कर बात करते हैं और कहने लगते हैं ओ माँ क्या सारे पैसे यानी तेरी बीमारी पे मैं खर्च कर दूं, तेरी दवा पर खर्च कर दूं। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, याद रखना तू किस माँ से जबान लड़ा रहा है, किस बूढ़े बाप से जबान लड़ा रहा है, कभी तुमने सोचा गए? याद रखना अगर माँ नाराज है तो याद रखना बाप अगर नाराज है जलसों में आना बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो, माँ बाप अगर नाराज है मस्जिद जाना तेरा बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है मदरसा जाना बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है पैसे लुटाना तेरा बेकार है। याद रखना अगर किसी की माँ नाराज है और चाहते हो गौसे आजम राजी हो जाए, घर चले जाना, अपनी माँ को राजी कर लेना, बाबा को राजी कर लेना, माँ बाप यहाँ राजी रहेंगे, बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। याद रखना लोगों, और माँ बहनों तुमसे भी कहना चाहूंगा अपने शौहर को राजी कर लो। गौर से सुनिएगा और नौजवानों, जिनकी माँ नाराज है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सलीमुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाद हजरत ही की तकरीर होने वाली है। अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं, लेकिन हजरत अगर आ चुके हैं उनकी तकरीर आपको गौर से समाप्त करनी है। उनके बाद एक चेहरा आले रसूल औलादे अली औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उनकी तकरीर जरूर सुनकर जाना, वरना कई बरसों तक पछताओगे। सुनिएगा, जिनकी माँ नाराज है, जिनके बाप नाराज है, घर जाना यहाँ से उठ के अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों से लिपट जाना और माँ के कदमों से लिपट कर कहना ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश न रहना, माँ के बेटो कोई खामोश न रहना, सुनना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा बोलना चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। सुनना प्यारे, एक शेर जहन में आया है, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, सबों की इज्जत अगर है माँ बाप की वजह से है। गौर से सुनना लोगों, ये मुफ्ती साहब से पूछे, मिसबाही साहब से पूछे, मुफ्ती साहब मुफ्ती नसीम साहब से पूछिए जो आपके यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन है, यहाँ के शेखुल हदीस है, उनसे पूछिए, ये बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा गए, इनसे पूछिए अगर इनको इज्जत मिली गए तो माँ बाप के कदमों के सदके में, माँ बाप की खिदमत के सदके में घर जाना और कहना ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। सुनना सुनना, तेरी खिदमत से दुनिया में
تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ لوگوں غوث اعظم نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کر لو، ماں باپ اگر راضی رہیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سنو، غوث اعظم نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کا دوست بن جاؤ، اللہ تیرا دوست بن جائے، نماز کی پابندی کرو۔ او لوگو، آج یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو، یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو، یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یہ علماء سے پوچھئے، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا غوث کا سچا دیوانہ وہ ہوگا جو فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر و مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے۔ غوث کا سچا دیوانہ وہ ہوگا جو نماز کی پابندی کرے گا۔ یاد رکھنا لوگوں، اگر نماز نہیں پڑھتے گو اور تم یہ سوچتے گو ہم غوث کا دیوانہ گئے، لاکھوں کیا اگر کروڑوں اربوں روپے لٹا دو گے، اگر نماز نہیں پڑھتے گو ان پیسوں کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، میدان محشر میں اگر پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھے بغیر کوئی غوث کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء سے پوچھئے، او ماں بہنوں تم بھی تو نماز نہیں پڑھتی، تم اپنے بچوں کے پیشاب کا بہانہ بنا لیتی ہو۔ یاد رکھنا وہاں کوئی بہانہ نہ چلے گا، اگر چاہتی ہو قبر تیری روشن ہو جائے، قبر منور ہو جائے، قبر کی اندھیری کو دور کرنا چاہتی ہو، نماز کی پابندی کرتے جاؤ، اگرچہ جھوپڑی میں رہو گی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا غوث اعظم نے 4 کام کرو، پہلا ماں باپ کی فرما برداری کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے تیری دوستی ہو جائے، اللہ تجھ سے دوستی کرنے لگے، 4 کام کرو۔ پہلا کام ماں باپ کی فرما برداری، دوسرا کام کا نماز کی پابندی کرو۔ او لوگو، جس غوث کا نعرہ لگاتے ہو علماء تشریف فرما ہے، ذرا پوچھو وہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء پڑھنے مسجد کے اندر جاتے گئے، اس وقت تک باہر نہیں نکلتے گئے جب تک کہ فجر کی نماز نہیں ہو جاتی گئے۔ لگاتار مسلسل 40 سال تک غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے گئے۔ یعنی سوتے نہیں ہیں تو وہ غوث اعظم ہے، لیکن آج ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو، اللہ کی قسم پھر یہ نعرہ کام نہیں آئے گا۔ یہ نعرہ اسی کے لیے کام آئے گا جو غوث کے نام کا نعرہ بھی لگاتا ہے، آذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ ہاں، ہم سے غوث اعظم ان سے محبت کرتے